हम सब की ओर से, देश भर के कार्यकर्ताओं की ओर से का स्वागत करेंगे। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। বিজেপির সদর দপ্তরে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবি আপনারা দেখছেন সরাসরি টিভি9 বাংলার পর্দায়। गारंटी है भाई, गारंटी है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबका अभिवादन का स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। पूरे देश के कार्यकर्ताओं की ओर से गारंटी है भाई, गारंटी है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। 4 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে 3 রাজ্যে গেরুয়া ঝড়, হিন্দি বলয় 3 রাজ্যেই গেরুয়া ঝড়। পদ্মে আস্থা মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও বিজেপির দাপট। পদ্মে আস্থা মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়েও। দিল্লিতে বিজেপি সদর দপ্তরে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছে গিয়েছেন। সেই ছবি সরাসরি আপনারা দেখছেন টিভি9 বাংলার পর্দায়। দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী। গো বলয় মোদি ম্যাজিকেই বিজেপির ম্যাজিক ফিগার। সরকার নির্বাচনে ভরসার মুখ চেয়েছে জনতা। মধ্যপ্রদেশে কমলনাথ ব্যর্থ, কমলনাথ ফের ভরসার মুখ শিবরাজ সিং চৌহান। পালা বদলে ট্র্যাডিশন বহাল রাজস্থানে। সব মিলিয়ে আজ সেমিফাইনাল বারবার বলা হচ্ছিল, কারণ লোকসভা নির্বাচনের আগে আজকের এই ফলকে সেমিফাইনাল বলা হচ্ছিল। আমার সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার এই মুহূর্তে রয়েছেন বিজেপির সদর দপ্তর থেকে। আমি জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে জানতে চাই, জ্যোতির্ময় কিছু ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাকিটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি ইতিমধ্যেই উঠেছেন এবং যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি হাত পাচ্ছেন। বিজেপির জন্য আজকের এই জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়, কারণ কর্ণাটক এবং হিমাচল প্রদেশের হারের পরে যে প্রশ্ন বারবার ধরে উঠছিল বা যে প্রচার বিশেষত বিরোধীদের তরফ থেকে লাগাতার করা হচ্ছিল যে 2014 পর থেকে বিজেপির প্রত্যেকটা লড়াইয়ে মূল পুঁজি বা হাতিয়ার হচ্ছে ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর ইমেজ। ফলত ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ইমেজকে যখন হাতিয়ার করে বিজেপি লড়াইতে যায়, সেই সময় কর্ণাটক এবং হিমাচল প্রদেশের হার বিজেপির জন্য অন্যতম বড় ধাক্কা ছিল। এই 3 রাজ্যের জয়ে সেই ব্যক্তি ইমেজ আবারও পুনরুদ্ধার হলো। প্রধানমন্ত্রীর ম্যাজিক আবারও মোদীর ম্যাজিক হিসেবে তা আবারও স্বীকৃতি ছিল। এবং তার পাশাপাশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হচ্ছে এই যে জায়গা অর্থাৎ হিন্দি হার্টল্যান্ড, এই জায়গা কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির একেবারে সামনাসামনি টক্কর। এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে বিষয়টা বিজেপির কাছে সব থেকে বেশি ক্লিয়ার তা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোট যতই সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেদের হারানো জমি তারা পুনরুদ্ধার করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিজেপির কাছে কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। অর্থাৎ যদি তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে অত্যন্ত ভালো ফল করে, যদি আম আদমি পার্টি দিল্লি বা পাঞ্জাবে অত্যন্ত ভালো ফল করে, বা ডিএমকের মতো আঞ্চলিক দল তারা ভালো ফল করে, যদি সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের রেজাল্ট ভালো না হয়, তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই বিজেপির বিকল্প হিসেবে এই বিরোধী দলগুলি উঠে আসতে পারবে না। ফলত প্রথম থেকে যে বার্তা বিজেপির তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছিল তা হচ্ছে কংগ্রেস মুক্ত ভারত, অর্থাৎ সেটাই মূল রণকৌশল। এই 3 রাজ্যের ভোটের যে ফলাফল তা 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে কিছুটা হলেও কিন্তু বিজেপিকে আশ্বস্ত করবে, কারণ তারা দুর্বল কংগ্রেসকে সামনে রেখেই তারা পরবর্তী নির্বাচনের দিকে তারা লড়াইতে যাচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাকে সম্মান জানানো হচ্ছে, তাকে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রয়েছেন ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং, রয়েছেন তার সঙ্গে জেপি নাড্ডা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্ট যে শিবরাজ সিং চৌহান তিনি ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছেন। অপর দিক থেকে আমরা দেখেছি যে আবারও অপ্রত্যাশিত ভাবে ছত্তিশগড়ে জয় এসছে, রাজস্থানে জয় এসছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও মোদী যে মূল মুখ আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে কিন্তু তা ফের একবার স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে।
একেবারেই তাই। আজকে এখনো পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে যে জয় জয়কার বিজেপির 3 রাজ্যে এবং সেখানে এই মুহূর্তে বিজেপির সদর দপ্তর থেকে সরাসরি সেই ছবি আপনাদের আমরা দেখাচ্ছি। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को सहाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो,
चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण। ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके संदेश देते हैं, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पलड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडियन अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं हुई। ये नए नए लोग, ये इंडियन अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है, ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की। क्या उस समय उनको ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है? ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल नहीं गया है, बल नहीं गया है। और ये चुनाव के नतीजे ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में, क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए, मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में
मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आशीर्वाद के लिए, उनके समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे रणनीति क्या है, रणनीति क्या है। मैं बार बार बोलता था रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को जो बारीकियां संगठन ने बताई थी उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए बूथ पर जाकर के काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आपके साथ साथ मैं भी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हूं। इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं।